12 4 जा 48. So 3/4. Okay. Equivalent fraction of with denominator 4. Denominator we need to put 4. So this will be also multiply 1. So 3/4. Question number 7 देखिए. Question number 6. Question number 6 is check whether the given fraction are equivalent or not. Check whether the given fraction are equivalent. So see question number 6 A part. मैम ये हो गया था हमारा. कोई बात नहीं आपका हो गया. न्यूमरेटर 9 और डिनोमिनेटर 4. ठीक है ठीक है हो गया हमारा. ओके ओके म्यूट एवरीवन. मैंने होमवर्क में दिया था ना आपको. यस मैम. हाँ तो आप म्यूट रखिए जिन बच्चों का नहीं हुआ उनके लिए. 5/9 30/54. So 30/54 when we divide it by 6 we have 5/9. So 5/9 is equal to 5/9. So yes it is equivalent. Now B part. B part is 3/10 12/50. So 12/50 देखो 12/50 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं. सो लेट वी डिवाइड इट बाय 4. 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, रिमेनिंग 10. सो 4 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड करते हैं. 2 6 जा 12 एंड ये हो जाएगा 25. ओके सो 3/10 इज नॉट इक्वल टू 6/25. So no it is not an equivalent fraction. No it is not an equivalent fraction, right? Understood everyone? Yes ma'am. Yes ma'am. Understood Let us see C part. C part we will see. C part is 7/13 and 5/11. देखो 7/13 and 5/11. This is in simplest form. We cannot divide it. Further we cannot divide it. So 7/13 is not equal to 5/11. So no. इसमें भी क्या है? No. It is not an equivalent fraction because both fractions are not same. Got it? Got it ma'am. Please note it down. Done ma'am. Done? Yes ma'am. Noted ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Done ma'am. Question number 7. Done ma'am. Question number मैम सी ठीक है. पार्ट मत मिटा. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. Reduce the following fraction to simplest form. A part. A part is 48/60. इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है बच्चों. सिंपलेस्ट फॉर्म में तो ग्रेटर नंबर कौन सा होगा जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे? 12. 12. Ma'am 12. Ma'am 12. Yes, we can divide both by 12. So 12 4 जा 48, 12 5 जा 50, 60. So 4/8 is the simplest form. 150/60. See student 0 से 0 कट. फिर देखो 6 and 15 दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 3 के. Yes. Plus 6 and 3 की टेबल. 3. 2 जा 6 and 3 5 जा 15. So 5/3. मैंने पहले 0 को 0 से कट किया है, ठीक है ना? It is the simplest form. Now let us see part. Let us do. मैम 5/2 है ना. Yeah, 5/2. हाँ 5/2 sorry. Let us do C part. 84/98. ठीक है बच्चों. अब जैसे मान लो मुझे नहीं पता कि ये कौन सी टेबल में आते हैं, ठीक है?
बट मुझे पता है कि मैं इसको किससे डिवाइड कर सकती हूँ, 2 से डिवाइड कर सकती हूँ, और मैं इसको 3 से भी डिवाइड नहीं कर सकती, 4 से डिवाइड नहीं होगा बेटा, ठीक है, 2 से डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है। सो 84 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, देखो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, 42 एंड 2 4 जा 8, रिमेनिंग 1 18 हो गया, 2 9 जा 18, सो दैट इज 42 by 49, 42 by 49, and this is the simplest form because we cannot divide it further, ठीक है। So this is the simplest form, 42 upon 49 is the simplest form of this मैम fraction. 7 से Got डिवाइड it? हो जाएगा। Yes, ma'am. Oh yes, 7 से divide, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 6 upon 7. Good. Noted, ma'am. Done, ma'am. Done. Noted, ma'am. No, ma'am. No ma'am. No ma'am. Done, ma'am. No ma'am. Done, ma'am. Rub कर दो. See student, D part and E part. D part is 12 upon 52. Okay. So we don't know किससे डिवाइड होगा नहीं पता, so मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ, देखो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 5 minus 4 1, so 1 और 2 12 हो जाएगा, and 2 6 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा मैम 12, डी की जगह 45 आएगा, डी की जगह 45. 6 upon 26. Now we divide it by 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, so 3 upon 13. 3 by 13. 2 3 E by part 13. देखो, E part is 7 upon 28. 7 1 जा 7, 7 4 जा 28. That is 1 upon 4. 4. So any doubt? No, ma'am. No doubt, ma'am. Noted, ma'am. No doubt. मैम एक बार सी वाला फिर से समझा दीजिए। मैम. ठीक है, सी वाला Done, ma'am. नोटेड मैम। ओके। मैम एक बार डी वाला फिर से समझा दीजिए. अरे डी वाले में क्या है, 12 upon 52 2 से डिवाइड करो। चलो मैं फिर से समझा दूंगी, डोंट वरी। Okay, now I am erasing it this. Done मैम। ये भी मिटा दूं? यस No, ma'am. Yes, मुझे पता पता था, था, कौन सा बोलेगा। सी स्टूडेंट, सी वाला पार्ट पूछा है किसी बच्चे ने। सो 84 अपॉन 98। सी मुझे नहीं पता ये किसकी टेबल में आते हैं, ग्रेटर कौन सा टेबल है, 17 की है 18 की है, मुझे नहीं पता, ठीक है। बट मुझे क्या पता है कि लास्ट में 4 है और यहाँ पे लास्ट में 8 है, दैट मीन्स इट कैन बी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, 2 से पहले डिवाइड करते हैं, देखो इसको। सी स्टूडेंट, वैसे डिवाइड करना ये होता है, ठीक है, बट जब फ्रैक्शन होते हैं तो हम डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। डायरेक्ट कैसे डिवाइड करते हैं, देखो 4 8 यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना आगे से। सो 8 2 की टेबल में 8 कितने टाइम बोलने पे आता है बच्चों, 4 2 4 जा 8। अब नेक्स्ट क्या है 4, सो 2 1 जा, सो 2 2 जा 4, तो ये डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 9 से कम क्या आता है 2 की टेबल में 8, कितने टाइम बोलने पे 4 टाइम, सो 2 4 जा 8। अब 9 minus 8 1 रिमेनिंग 1. सो 1 इसके साथ आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 18 बन जाएगा। 18 बन गया, मैम so 9 2 की टेबल times में 9 जाना आता है. 18, so 42 upon 49 आ गया आपके पास। Now you know 7 की टेबल, 7 6 जा 42, 7 9 जा 49, 6 upon 9, सॉरी 7 7 जा 6 upon 7,
ठीक है, ये तो था सी पार्ट। मैम। ओके सबसे मैम, पहले किसने पूछा था सी पार्ट? अंडरस्टूड। ई पार्ट वापस समझा दो। सी पार्ट समझ आ गया जिसने पूछा था? यस मैम ई मैम। पार्ट, मैम ई पार्ट वापस समझा दोगे? ई पार्ट, डी। ई मैम, मैम ई मैम पार्ट, ई बोल रहा है, ई बोल रहा है। मैम ई ई पार्ट, पार्ट बोल दो। ई पार्ट। ई पार्ट में बहुत इजी है। चलो कोई नहीं, वापस Yes, एक्सप्लेन कर दूंगी। पहले डी पार्ट देखो, पहले डी पार्ट देखो। देखो बच्चों, वही बोल रहा 12/52 वी नो 12/52 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। देखो 4 से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, 2 से भी कर सकते हैं। तो अगर किसी को 4 से रिमाइंड में नहीं आता तो वो 2 से करेगा। 2 से एक बार मैं बता देती हूँ। देखो 2 ये 12 है, तो 2 6 जा 12। अब ये देखो 52 है, so 2 2 जा 4, so 5 में से 4 का रिमेनिंग 1, 1 and 2 कितना हो गया फिर से 12, 2 6 जा 12, तो 6/26, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये हो गया आपका 3/13। ठीक है, और जिसने ई पार्ट देखा पूछा था वो सुन लो फिर से। ई पार्ट इज 7/28, 7/28। सी स्टूडेंट, 7 और 28 को सेम नंबर से आपको डिवाइड करना है। तो 28 जो है वो खुद 7 के टेबल में आता है, तो 7 1 जा 7, ये 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। 28 दैट इज 1/4। ओके मैम समझ आ गया। मैम मुझे नीचे वाला पार्ट समझ नहीं आया था, आपने 4 से क्यों डिवाइड किया था, समझ आया। 7 1/4 that. नाउ क्लियर एवरीवन? यस मैम। क्लियर मैम। सो मैं ये इरेज कर रही हूँ। तो बच्चों ऐसे फ्रैक्शन को डिवाइड करना आ गया ना आपको? यस मैम आ गया। यस मैम आ गया। आ गया। गुड। यस मैम आ गया। चलो एक दो क्वेश्चन देखते हैं इसकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 देखो, लास्ट 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। Ramesh had 20 pencil, Shilu had 50 pencil, Jamal has 80 pencil. After 4 months, Ramesh used up 10 pencil, Shilu used up 25 pencil, and Jamal used up 40 pencil. What fraction did he use up? Did they use up? Check if each of has used up an equal fraction of his, her यस pencil. तो बच्चों हाफ है। मैम इसमें 1/2 होगा, 1/2, 1/2। प्लीज म्यूट आई साइड। मैम द आंसर इज 1/2। शीलू, रमेश एंड जमाल 3 लोग हैं यहाँ पे। शीलू के पास कितनी, रमेश के पास कितनी है 20, शीलू के पास कितनी है 50 और जमाल के पास कितनी है 80। और इन्होंने यूज कितनी करी देखो, रमेश ने 10 पेंसिल यूज करी 1/2 हो गया। और शीलू ने यूज करी 25 पेंसिल, ये भी 1/2 हो गया। और इसने यूज करी 40 पेंसिल। 1/2 हो गया। ये भी 1/2 हो गया। अरे तुम ही पढ़ा लो ना, यहाँ आ जाओ, स्कूल में पढ़ा लो बच्चों को, तुम्हें ज्यादा आता है। फिर बेटा अपनी क्लास में 53 बच्चे हैं, 53 बच्चे सारे तो इंटेलिजेंट हो नहीं सकते ना, ठीक है। तो कई बच्चों को आता है, कई बच्चों को नहीं आता, तो जिनको नहीं आता उनको तो समझने दो। देखो बच्चों, इनका फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले रमेश का अगर हम फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं, रमेश का फ्रैक्शन आएगा आपका, यूज कितनी करी 10, 10/20, 10/20, तो 0 से 0 कट 1/2, 1/2। ठीक है। शीलू's फ्रैक्शन 25/50 is 25/50। देखो 5 5 जा 25, 5 10 जा 50, again 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, that is again 1/2। 1/2। Now Jamal, 40/80 Jamal's fraction is 40/80, 0 से 0 equal to 4/8, equal to 4 1 जा 4/8, equal to 4 2 1/2। जा 8, that is 1/2। तो तीनों का फ्रैक्शन कितना आ रहा है बच्चों 1/2, Equal, 1/2,
1/2। Ma'am, this is all equal. सो हम लिखेंगे ऑल, इसका Sorry, आंसर है paper. ऑल हैव यूज्ड an equal fraction of their pencils। सबने इक्वल फ्रैक्शन यूज किया है पेंसिल का। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. हो गया बच्चों? नो मैम। ये हार्दिक सबसे पीछे रहता है, राज सिंह भी पीछे रहता है। मैम मेरा हो गया मैम। रेस कर दो। टोटल मैम। नो मैम। नो मैम। डन मैम। डन मैम। मैं बस मुझे ये लिखना है ऑल हैव। चलो मैं इधर का मिटा रही हूँ फिर। मैम उसके नीचे का मत बिठाना। ओके ओके ओके। Let's move to question number 9. देखो बच्चों एक बार फिर से इसको देख लो, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था इसको फिर से देखो। ये था आपके पास 25/50, ठीक है, 25/50। सो देखो कैसे करेंगे इसको, 5 से डिवाइड करते हैं। 5 5 जा 25 एंड 5 10 जा 50। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सो इट इज 1/2। ओके, सो अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन। अब मैं लास्ट क्वेश्चन पे है ना, मैं जिससे पूछूंगी ना वो बताएगा आंसर, सारे बच्चे चेंज नहीं करेंगे। ओके, देखो दिव्यांशु क्लास लेफ्ट कर दिया। मैम आपने मैम बेटा वॉइस इज नॉट कमिंग। फिर वो कितने सारे बच्चे लेफ्ट हो गए। इतने सारे बच्चे लेफ्ट हो गए, इनकी सबकी क्लास लगेगी, तुम चिंता मत करो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज यू नीड टू फर्स्ट सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन एंड मैच द simplest form of that fraction. Understood? Yes ma'am. Yes ma'am. So Justin Joseph, please unmute. यस मैम। बताओ सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे इसमें? मैम पहले 0 को काट देंगे। यस, 0 कट बाय 0। नाउ इट इज 25/40। अब मैम फिर बाद में मैम इसको डिवाइड कर देंगे। किससे? 25 को 40 से। यस, बोलिए क्या आएगा? मैम पहले 5 और 0 कट कर देंगे तो फिर बाद में 2/4 यानी कि हाफ। आंसर बताओ मुझे, फाइनल क्या आएगा? फाइनल में आएगा हाफ मैम 1/2। 1/2 कहाँ से आएगा? मैम एक मिनट सारे बच्चे चुप। 4/5 आएगा। 4/5। ये तो 5 से डिवाइड होगा ना, ये भी 5 से डिवाइड होगा ना जस्टिन। 5 से डिवाइड Four तू by उधर five. करो स्टेप बाय स्टेप। 5 5 जा 25। तुमको 5 5 5 जा 25। से डिवाइड करो ना जस्टिन, दोनों 5 से डिवाइड होगा ना। 40। हां तेरे हाथ ऊपर रखे। हां 5 by 8। 5 हां इक्वल टू पहले इक्वल टू अंडरस्टूड? इक्वल टू लिखो 5, उधर 5 प्लीज लिखो म्यूट एवरीवन। और इधर कितना में जाएगा? आराम से करो। प्लीज म्यूट। 8 ओके बच्चे, Justin, mute yourself. 5/8 8 जाएगा। किससे मैच करेंगे इसको? हां ब्रदर 1/2 बोल रहा है फालतू। किससे मैच करेंगे बताओ? तुम आंसर बोल। मैम D से।
मैम डी से डी से 5/8। तुम कर Very नहीं good. बस सिर्फ सुन रहा बस। Very good, Justin. आपने थोड़ा सा तो ठीक बताया। जस्टिन ने देखो यहाँ तक सही बताया, 0 से 0 कट हो गया। फिर जस्टिन ने ये भी सही बताया कि मैम 5 से डिवाइड करेंगे, फिर लास्ट में गलत हो गया। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 180/200। 180/200। सत्यजीत म्यूट अनम्यूट। यस बोलो सत्यजीत। मैम 0 से 0 काट देंगे, यस 0 से 0 कट। नाउ फिर मैम 2 से डिवाइड करेंगे इसमें। 2 9 से 18 और 2 10 से 20। वेरी नाइस। 2 9 से 18 एंड 2 10 से 20। सो दिस इज 9/10। किससे मैच करेंगे इसको? देखो किससे मैच करेंगे इसको? मैम ई से। यस ई पार्ट से। थर्ड वन इज थर्ड 660/990। यस अब अनम्यूट करेगा हंसल। हंसल अनम्यूट। वेयर इज हंसल? हंसल मैम नहीं है क्लास में? नो 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 नो। ईशांत ईशांत यस मैम। एक मिनट। हंसल आ गया। हंसल आंसर बताओ इसका, कैसे करेंगे इसको? हंसल बताओ सबसे पहले क्या करेंगे इसमें? मैम कैन आई टेल? नो ओनली हंसल विल टेल। हंसल नहीं आता आपको? सॉरी मैम, आई डोंट नो। क्या बेटा? जोर जोर से बोलो। सॉरी मैम, आई डोंट नो। ओके ओके इट्स ओके। नाउ ईशांत। ईशांत अनम्यूट। ईशांत बताओ कैसे करेंगे? हम सबसे पहले 0 से 0 कट। यस नाउ अब किससे डिवाइड करेंगे? वेरी गुड। ये सबको आता है कि 0 से 0 कट करना है, आगे नहीं आता है ना? मैं बताऊं? मैम कैन आई टेल? नो। यस ईशान अब किससे डिवाइड करेंगे? बोलो बेटा। नहीं आता? सॉरी मैम, आई डोंट नो। यस यस शिवा हरणी। शिवा हरणी। मैम कैन आई टेल? नो शिवा हरणी। यस बोलो। मैम 3 से डिवाइड करेंगे। यस वी कैन डिवाइड इट बाय 3। सो क्या आएगा यहाँ पे? मैम 22/3। 22 अपॉन मैम 2/3। 33। 33। अब किससे डिवाइड करेंगे? मैम इसको 11 से करना चाहिए था। 11 से 11 से। बेटा मैम हम सीधा 11 कर देते हैं ना। यस 66 बच्चों आप डायरेक्ट इसको 11 से डिवाइड कर देते थे। 66 अपॉन 99। 11 6 या 66, 11 9 से 99। फिर हो जाएगा आपके पास 6/9। अब आप 3 से डिवाइड कर दो। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2/3 आएगा। 2/3। ओके मैम। गॉट इट? आंसर इज ई। आंसर इज मैम मैंने 11 वाले से ही करा। आंसर इज मैम 2/3। मैम आंसर इज 2/3। मैम 3 वाला एक बार वापस से रिपीट कर दो। कौन सा वाला? ये वाला? मैम थर्ड वाला। हाँ ठीक है। देखो 660/990। ठीक है। सबसे पहले हम 0 को 0 से कट करेंगे। अब देखो बच्चों 66 एंड 99 आप इसको 3 से भी डिवाइड कर सकते हो और आप इसको 11 से भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे मैं 11 से डिवाइड कर रही हूँ, 11 6 या 66 और 11 9 टाइम ये जाएगा 99। 11 9 से 99। 6/9 तो 6/9 दोनों 6 और 9 किसके टेबल में आते हैं? 3। So 3 2 जा 6, 3 2 जा 9. So that is 2/3. It is the simplest form. मैम 2/3।
Ma'am, can I tell the answer of next one? मैम कैन आई मुझे टेल पता है, मुझे Can I किससे tell? पूछना है? Ma'am, अब आप नो नो म्यूट, आई सेड म्यूट, अभाव अनम्यूट, अभाव देवश्री, अभाव Ma'am, can I tell? नो, Ma'am, can I tell? अभाव प्लीज अनम्यूट, Can I tell? अभाव एक चांस आएगी। दिवजोत कौर, अभाव, अभाव सुन नहीं रहा है मेरी आवाज को। यस अनुज, अनुज मीना, अनुज अनम्यूट, शौर्य प्लीज चुप हो जाओ। अनुज, अनुज अनम्यूट योरसेल्फ। अनुज मैं घर पे कॉल कर दूंगी, पता है ना? ओके विहान, मैम कैन आई प्लीज, विहान, विहान Ma'am, can वर्मा I tell, please? नहीं। मैम चलो मुझे पता चल गया। ओके वेदांत, वेदांत बताएगा। वेदांत, वेदांत बोलो वेदांत। Ma'am, I do not know. तेरे थप्पड़ लगाऊंगी। Ma'am, can I Do not know। मैम कैन आई टेल प्लीज, मैम कैन सोनाक्षी चौधरी, मैम प्लीज कैन आई टेल। मैम बाकी सारे का पता है, इसका नहीं पता। हाँ बेटा बताओ कैसे करेंगे इसको। मैम, पहले 0 से 0 काटा जाएगा। वेरी गुड। अब किससे डिवाइड करेंगे। किससे? 2 से। हाँ 2 से करो। यहाँ क्या आएगा बताओ? मैम, और यहाँ पे बचता तो फिर 2 बेटा 36 को 2 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा साक्षी? मैम 18 आएगा। वेरी गुड। अब किससे डिवाइड करेंगे? मैम 3 से। बेटा 9 से कर दो डायरेक्ट। 9 1 सा 9, 9 सा 18, 9 1 सा 9, 9 2 सा 18 कितना आ गया बच्चों? मैम इसे पूरा डायरेक्ट कर सकते हैं। मैम सीधा डायरेक्ट हो सकता था। आंसर इज 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 36। 18 मल्टीप्लाई आंसर ओके ओके म्यूट आई सेड म्यूट। इतना करने की जरूरत नहीं थी, इसको आप डायरेक्ट 6 से कर देते। देखो 6 3 जा डायरेक्ट कर सकते थे 6 से। अदरवाइज अगर आपको 18 का टेबल आता है, मैम 18 1 सा 18, 18 2 सा 36। मैम कैन आई टेल द मैम मुझे भी टेबल आता है। ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन। Can I tell the next नेक्स्ट one? क्वेश्चन Ma'am, can I tell? Ma'am, can I tell? Ma'am, म्यूट can I tell? सारे बच्चे म्यूट करो। Chupra. चुप रहो। फिफ्थ पार्ट इज 220 अपॉन 550। यस तनुज 220 अपॉन 550। तनुज मैम सबसे पहले 0 से 0 काटो। फिर मैम 11 से डिवाइड करेंगे। यहाँ कितना आएगा? मैम यहाँ पे 2। वेरी गुड। और यहाँ पे मैम 5। वेरी गुड, दैट इज 2 अपॉन 5। सो वी विल मैच इट बाय बी पार्ट। ओके मैम 2 upon 5। सो क्वेश्चन नंबर 9 के किसी भी पार्ट में आपको किसी को भी डाउट है बच्चों? नो किसी भी मैम। बच्चे को ठीक है। सो जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिए, ओके अब सारे बच्चे म्यूट करो। वेदांत प्रैक्टिस कर, प्रैक्टिस वरना पीटूंगी घर पे आके। ठीक है ना, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से होगा। एंड हंसल आप भी प्रैक्टिस करो बच्चों, प्रैक्टिस करो। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना समझ आएगा।
जस्टिन आप भी प्रैक्टिस करो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है? ओके मैम। हाँ, आप गूगल पे निकाल लो और क्वेश्चन कोई और बुक से, जैसे अपने पास एक वर्क बुक भी आती है, हॉली फेथ की वर्क बुक परचेज कर लो मार्केट से, अदरवाइज गूगल से क्वेश्चन निकाल लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको क्लियर होंगी ये चीजें। मैथ्स में प्रैक्टिस करना होता है, ओनली प्रैक्टिस। देखो मैं आपको बताऊं, पेज नंबर 146 पे आओ एक बार, पेज नंबर 146 आ गए? मैम आ गई। ऊपर एक कॉलम है दिस। यस मैम। देखो इसमें कितने क्वेश्चन है, आप लोगों ने प्रैक्टिस की है? नहीं किए ना? नो मैम। तो बेटा प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना सीखोगे। और देखो मैं बताती हूँ आपको, एक तो ये वाला कॉलम पेज नंबर 46 के ऊपर कॉलम है, इसमें दिए हुए हैं प्राइजेस में दिए हुए हैं और एग्जांपल्स भी हैं। देखो इसमें एग्जांपल 5, एग्जांपल 4, तो एग्जांपल्स भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। और एक और है ट्राई दिस में पेज नंबर 143, इसमें है मैम इनको फेयर नोटबुक में करना है क्या? नहीं, आपको इनको नोटबुक में प्रैक्टिस करने हैं। दीज आर फॉर प्रैक्टिस ओनली, ठीक है? ठीक है जस्टिन एंड वेदांत, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, एग्जांपल में भी है, ट्राई दिस में भी है। प्रैक्टिस करो बच्चों, ऐसा नहीं होगा। अगर आप इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना नहीं सीखोगे ना तो आगे फिर बहुत प्रॉब्लम आएगी बड़ी क्लासेस में, ठीक है? चलो एक चीज देखो, अपनी एक्सरसाइज 7.3 खत्म हो गई ना? देखो एक इस बार चलो हम इनको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना थोड़ा सा और देखते हैं, देखो जैसे मेरे पास एक नंबर है 2025 अपॉन 4450, ये नंबर है, ठीक है? मुझे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले बताओ मैं किससे डिवाइड करूंगी बच्चों? मैम 2 से अब डिवाइड कर दो। 25 50 हो जाएगा वो। मैम 5 25 हो जाएगा। रूल क्या था कि 2 से डिवाइड करने के 25 लिए वो इवन नंबर होना चाहिए। मैम ये 2 से 25 कर दो। ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 25 से ही कर दो। We will divide it by 25 से ही हो जाएगा। मैम 5 से। मैम ये 5 से हो Yes, सकता है 5. फिर। तू किसने बोला? मैम मैंने नहीं बोला। तूने बोला ना, तो थप्पड़ लगा आपने। मैम मैंने नहीं बोला, मैंने 5 बोला। शौर्य ने बोला। मैम 5 ही हो गया इसका। मैम जिसने 2 बोला अपने अपने थप्पड़ लगाओ। गलत आंसर देते हो आप लोग। 5 से डिवाइड होगा बच्चों। देखो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो। अब सारे म्यूट करेंगे, सब बच्चे प्लीज म्यूट करेंगे, समझो इसको एक बार कैसे करना है। देखो 450 सॉरी, तो 450 में से आप देखेंगे बच्चे, ये जो 45 है ये 5 के टेबल में आता है। सो 5 9 45। अब ये 0 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी हम 0 लिख देंगे एज इट इज, क्योंकि 0 तो कट हुआ ही नहीं ना। 5 9 45, ठीक है? अब यहाँ पे जो 2025, देखो यहाँ से हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो 2 से 5 से डिवाइड होगा नहीं तो हम 0 भी ले लेंगे, तो ये हो गया 20। तो 5 के टेबल 4 टाइम्स बोलने पे आता है 20, 5 हो जाए 20। अब हमें 25 पूरा लेना है। देखो 2 ओनली 2 5 से डिवाइड नहीं होगा तो हमें ये 5 भी लेना है, 25 पूरा लेना है। सो जब हम 2 नंबर एक साथ लेते हैं यहाँ पे बीच में, यहाँ पे भी हमने 2 नंबर एक साथ लिए ना, बट यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे। बट अगर आप बीच में 2 नंबर एक साथ लेते हैं तो आपको यहाँ पे एक 0 पुट करना पड़ता है, 0। Now 5 5 जा 25, so that is 405 upon 40, sorry 90। 05 लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अब आप अगेन 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 8 जा 40। देखो यहाँ पे हमने 2 एक साथ लिए थे बट ये स्टार्टिंग में था इसलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं करते। बट अगर आप बीच में 2 डिजिट एक साथ लेते तो आपको 0 अप्लाई करना पड़ेगा। सो
5 8s are 40 and 5 1s are 5. Now 5 1s are 5, तो 9 में से 5 गया, remaining 4, 4 0 हो गया 40, तो 5 8s are 40, so that is 81 upon 18. Now we can divide it by 9. 9 2s are 18, 9 9s are 91, so that is 9 by 2. Got it? यस मैम। Okay, यस मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ, 2 मिनट रुको।